خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھول دی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے نکلی دعا کا اعجاز تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہیں جو تیر لگے تھے وہ گہرے نہیں اترے تھے۔ تیر نکال لیے گئے اور بڑی تیزی سے مرہم پٹی کر دی گئی۔ یا رسول اللہ، خالد نے کہا، میں لڑوں گا، میں لڑنے کے قابل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد سے کہا کہ زبیر کے سوار دستے میں شامل ہو جاؤ، تم ابھی کمان نہیں لے سکو گے۔ خالد ایک گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ ان کے کپڑے خون سے لال تھے۔ انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوار دستے میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا حکم ہے؟ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ حوزان کے خیمہ گاہ پر حملہ کرنا ہے جو اوتاس کے قریب ہے، لیکن یہ حملہ ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے۔ اوتاس وہاں سے کچھ دور تھا۔ مالک بن عوف نے حوزان دستے کو وہاں تک ہٹا لیا اور اپنی خیمہ گاہ کے ارد گرد پھیلا دیا تھا۔ یہ دفاعی حصار تھا جس کی حوزان کے کیمپ کے ارد گرد ضرورت اس لیے تھی کہ وہاں وہ ہزاروں عورتیں، بچے اور مویشی تھے جنہیں قبیلہ حوزان کے سپاہی اپنے ساتھ لائے تھے۔ مالک بن عوف نے تو یہ سوچا تھا کہ حوزان اپنی عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ دیکھ کر زیادہ غیرت مندی اور بے جگری سے لڑیں گے، مگر اب یہ صورت پیدا ہو گئی کہ درید بن السمہ مالک بن عوف کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ اس کے منع کرنے کے باوجود مالک عورتوں کو ساتھ لے آیا تھا۔ ان کے لیے اب اپنے اہل و عیال مویشی کو مسلمانوں سے بچانا محال دکھائی دے رہا تھا۔ ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوار دستہ اوتاس کی طرف بڑھا۔ قریب گئے تو حوزان نے جم کر مقابلہ کیا۔ اب وہ جنگ جیتنے کے لیے یا مسلمانوں کو تہس نہس کر کے مکہ پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ مسلمانوں سے اپنے اہل و عیال اور مویشیوں کو بچانے کے لیے لڑ رہے تھے۔ یہ بھی دست بدست معرکہ تھا جس میں جنگی چالوں کے نہیں، ذاتی شجاعت کے مظاہرے ہو رہے تھے۔ سوار اور پیادے لڑتے ہوئے وادی میں پھیلتے جا رہے تھے۔ ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کے 9 سواروں کو ہلاک کر دیا، مگر 10ویں حوزان کو للکارا تو اس کے ہاتھوں خود شہید ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ان کا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ وہ تھے ان کے چچا زاد بھائی ابو موسیٰ۔ انہوں نے فوراً کمان سنبھال لی اور اب اپنے سواروں کو للکارنے لگے۔ حوزان زخمی ہو کر گر رہے تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درے میں روک لیا تھا، حکم دیا کہ اپنے دستے کو ابو موسیٰ کی مدد کے لیے لے جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے ضروری سمجھا تھا کہ دونوں اس دستے مل کر حوزان کا کام جلدی تمام کر سکیں گے۔ معزز ناظرین، ہمارے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر اب تک نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک لازمی کریں۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سواروں کو حملے کا حکم دیا۔ جب گھوڑے دوڑے، اس وقت خالد بن ولید کا گھوڑا دستے کے آگے تھا۔ حوزان پہلے ہی ہمت ہار چکے تھے۔ مسلمانوں کے دوسرے سوار دستے کے حملے کی وہ تاب نہ لا سکے۔ ان کے زخمیوں کی تعداد معمولی نہیں تھی۔ وہ اپنی عورتوں اور بچوں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے کیمپ کو گھیر میں لے لیا۔ چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے لڑاکو نے جب حوزان اور ثقیف جیسے طاقتور قبیلوں کو بھاگتے دیکھا تو وہ وہاں سے بالکل غائب ہو گئے اور اپنی اپنی بستیوں میں جا پہنچے۔ مالک بن عوف میدان جنگ میں کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ نظر آ ہی نہیں سکتا تھا۔ اسے اپنے شہر طائف کی فکر پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے قبیلوں کے سرداروں سے کہا کہ مسلمان جس رفتار اور جس جذبے سے آ رہے ہیں، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ طائف تک پہنچیں گے اور اس بستی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ خطرے کے پیش نظر اس نے قبیلہ ثقیف کے تمام دستوں کو لڑائی سے نکالا اور طائف کا دام لیا۔ پیچھے حنین کی وادی میں کیفیت یہ تھی کہ حوزان کی عورتیں اور بچے چیخ و پکار کر رہے تھے۔ تمام وسیع و عریض وادی مجاہدین اسلام کی تحویل میں تھی۔ مکہ کے جو غیر فوجی مجاہدین کے ساتھ آئے تھے وہ زخمی مجاہدین کو اٹھا رہے تھے۔ دشمن کے زخمی کرا رہے تھے، مر رہے تھے۔ مرنے والوں میں بوڑھا درید بن السمہ بھی تھا، وہ لڑتا ہوا مارا گیا تھا۔ مسلمانوں کو دشمن کے زخمیوں اور قیدیوں سے جو ہتھیار اور گھوڑے ملے، ان کے علاوہ 6000 عورتیں اور بچے، 24000 اونٹ،
40,000 بکریاں اور بے شمار چاندی ہاتھ لگی۔ مسلمانوں نے جنگ جیت لی تھی، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ مالک بن عوف کو مہلت نہیں دی جائے گی کہ وہ سستا سکے اور اپنی فوج کو منظم کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل شام کا سر کچلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مال غنیمت آئی ہوئی عورتیں، بچوں، مویشیوں اور دیگر مال کو ایک دستے کے ساتھ جعرانہ بیچ دیا گیا۔ اگلے حکم تک انہیں جعرانہ میں ہی رہنا تھا۔ دوسرے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اسلامی فوج طائف کی طرف پیش قدمی کر گئی، جہاں بڑی خونریز جنگ کی توقع تھی۔ معرکہ حنین کا ذکر قرآن حکیم میں سورۃ توبہ میں آیا ہے۔ بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معرکہ شروع ہونے سے پہلے کہا تھا کہ ہمیں کون شکست دے سکتا ہے، اتنی بڑی طاقت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ سورۃ توبہ میں یہ سورۃ التوبہ میں آیا ہے، اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کی اور حنین کے دن بھی جب تم کو اپنی کثرت پر ناز تھا، حالانکہ وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین باوجود اپنی وسعت کے تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول اور مسلمانوں پر تسلی نازل کی اور وہ فوجیں اتاری جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو سزا دی، اور کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ طائف بڑی خوبصورت بستی ہوا کرتی تھی، باغوں کی بستی تھی، پھولوں اور پھلوں کی مہک سے ہوائیں مخمور رہتی تھیں۔ طائف میں جا کر دکھی دل کھل اٹھتے تھے۔ یہ جنگجو سرداروں کی بستی تھی۔ یہ ثقیف جیسے طاقتور قبیلے کا مرکز تھا۔ اس بستی کے قریب اس قبیلے کی عبادت گاہ تھی، جس میں ثقیف، ہوزان اور چند اور قبائل کے دیوتا لات کا بت رکھا تھا، جو بت نہیں ایک چبوترا تھا۔ یہ قبائل اس چبوترے کو دیوتا کہتے اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ اس عبادت گاہ میں ان کا کاہن رہتا تھا، جسے خدا کا اور دیوتا لات کا ایلچی سمجھا جاتا تھا۔ کاہن فال نکال کر لوگوں کو آنے والے خطروں سے آگاہ کر دیتا تھا۔ کاہن کسی خوش نصیب کو ہی نظر آیا کرتا تھا، عام لوگوں کو کاہن نہیں عبادت گاہ کے صرف مجاور ملا کرتے تھے۔ کاہن کو جو دیکھ لیتا وہ ایسے خوش ہوتا جیسے اس نے خدا کو دیکھ لیا ہو۔ طائف کیونکہ ان کے دیوتا کا مساکن تھا، اس لیے یہ قبائل کا مقدس مقام تھا۔ ایک ہی مہینے پہلے طائف میں جشن کا سماں تھا۔ یہاں کے سردار اعلیٰ مالک بن عوف نے اپنے قبیلے جیسے ایک طاقتور قبیلے ہوزان اور کچھ اور قبیلوں کے سرداروں کو بہت بڑی ضیافت میں مدعو کیا تھا۔ علاقے کی سنی ہوئی خوبصورت ناچنے اور گانے والیاں بلائی گئی تھی۔ ان کے رقص نے تماشائیوں پر واجد طاری کر دیا تھا۔ اس رات شراب کے مٹکے خالی ہو رہے تھے۔ اس رات اہل ثقیف اور اہل ہوزان عہد کیا تھا کہ وہ مکہ پر اچانک حملہ کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے تمام مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ ان قبائل کے ایک ضعیف الامر سردار درید بن السمہ نے کہا تھا، اٹھو اور لات کے نام پر علف اٹھاؤ کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تمام پیروکاروں کو، جنہوں نے مکہ کے تمام بت توڑ ڈالے ہیں، ختم کر کے اپنی عورتوں کا منہ دکھائیں گے۔ مالک بن عوف، جس کی عمر ابھی 30 سال تھی، جوش سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ قبائل کا متحدہ لشکر مکہ میں مسلمانوں کو بے خبری میں جا دبوچے گا۔ اس رات مالک بن عوف، درید بن السمہ اور دوسرے قبیلوں کے سردار کاہن کے پاس گئے تھے۔ کاہن سے انہوں نے پوچھا تھا کہ وہ مکہ کے مسلمانوں کو بے خبری میں دبوچ سکیں گے، اور کیا ان کا اچانک اور غیر متوقع حملہ مسلمانوں کو گھٹنے بٹھا سکے گا۔ کاہن نے انہیں یقین دلایا تھا کہ دیوتا لات نے ہمیں آشیرواد دے دیا ہے۔ کاہن نے بڑے حسوق سے کہا تھا، مسلمانوں کو اس وقت پتہ چلے گا جب تمہاری تلواریں انہیں کاٹ رہی ہوں گی۔ اب ایک ہی ماہ بعد طائف کے حسن و اداس تھا۔ بستی کا ماحول پر خوف و ہراس طاری تھا۔ اپنے دیوتا لات کی آشیرواد سے اور کاہن کی یقین دہانی سے ثقیف اور ہوزان دیگر قبائل کا جو لشکر مکہ پر حملے کرنا گیا تھا، وہ مکہ سے دور حنین کے مقام پر مسلمانوں کے ہاتھوں پٹ کر اور تتر بتر ہو کر واپس آ رہے تھے۔ باغ کے آنے والوں میں پیش اس متحدہ لشکر کا سالار اعلیٰ
जवान साल और जोशीला मर्द सरदार मालिक बिन औफ था। वो सबसे पहले इसीलिए ताइफ पहुंचा था कि शहर के दिफा को मजबूत बना सके। मुसलमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में ताइफ की तरफ बढ़े आ रहे थे। ताइफ के लोगों, ताइफ की गलियों में घबराई सी आवाजें उठ रही थी। मुसलमान आ रहे हैं, शहर का मुआसरा होगा, तैयार हो जाओ, अनाज और खजूरें इकट्ठी कर लो, पानी जमा कर लो। सबसे ज्यादा घबराहट मालिक बिन औफ पर तारी थी। इसे ताइफ हाथ से जाता नजर आ रहा था। इसे शिकस्त और पसपाई की चोट तो पड़ी ही थी। सबसे बड़ी चोट इस पर यह पड़ी कि वो जब शहर में दाखिल हुआ तो औरतों ने इसकी बहादुरी और फतह के गीत गाने के बजाय इसे नफरत की निगाहों से देखा था। और इसकी लश्करियों को बाज औरतों ने ताने भी दिए थे। बीवियां और बेटियां कहाँ हैं जिन्हें तुम साथ ले गए थे? औरत लश्करियों से तंजिया लहजे में पूछ रही थी। बच्चे भी जो औरतें इन्हें दे रही थी। मालिक बिन औफ ने अपने साथ अपने नायब सलारों और कमांडारों को बिठा रखा था और इन्हें बड़ी तेज बोलते हुए कह रहा था कि दूसरे कबीलों को भी शहर में ले आओ, मुसलमान आ रहे हैं। मालिक बिन औफ ने जरा सा भी आराम न किया। आते ही ताइफ की दिफा मजबूत करने में लग गया। इसके नायब कमांडार और कासिद पसपा होकर आने वालों को इकट्ठा करने में लगे हुए थे। आधी रात तक वो थक कर चूर हो चुका था। इसने अपनी सबसे ज्यादा हसीन और चहेती बीवी को अपने पास बुलाया। वो आ गई। क्या आपने हल्फ नहीं उठाया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके तमाम पैरोकारों को जिन्होंने मक्का की बुत तोड़ डाले थे, खत्म करके अपनी औरतों को मुंह दिखाएंगे? बीवी ने इसे कहा, अब फतह के बजाय माथे पर शिकस्त का दाग लेकर आए हैं। आपके हल्फ और अहद के मुताबिक मेरा वजूद आप पर हराम है। तुम मेरी बीवी हो। मालिक बिन औफ ने गुस्से से कहा, मेरी हुक्म अदूली की जुर्रत नहीं करो। मैं बहुत थका हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। तुम मेरे सबसे प्यारी बीवी हो। आपको मेरी जरूरत है, बीवी ने कहा, लेकिन मुझे एक गैरतमंद मर्द की जरूरत है। मुझे इस मालिक बिन औफ की जरूरत है जो यहाँ से अहद करके निकला था कि मुसलमानों को मक्का के अंदर ही खत्म करके वापस आएगा। कहाँ है वो मालिक बिन औफ? वो मेरे लिए मर गया है। इस मालिक बिन औफ को मैं नहीं जानती जो अपने कबीले और अपने दोस्त कबीलों की हजारों औरतों और हजारों बच्चे अपने दुश्मन के हवाले करके अपनी ख्वाबगाह में आ बैठा है। वो एक औरत से कह रहा है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। इस हसीन औरत की आवाज बुलंद होकर जज्बात की शिद्दत से कांपने लगी। वो मालिक बिन औफ के पलंग से उठ खड़ी हुई और कहने लगी, आज रात तुम्हारी कोई बीवी तुम्हारे पास नहीं आएगी। आज रात तुम्हारी किसी बीवी को इन औरतों की आहें और फरियादें चैन से सोने नहीं देंगी जो मुसलमानों के कब्जे में हैं। जरा सोचो, तस्वुर में ला इन औरतों को, इन नौ खैज लड़कियों को जिन्हें तू मुसलमानों के हवाले कर आया है। वो अब मुसलमानों के बच्चे पैदा करेंगी। बच्चे जो इनके कब्जे में हैं वो मुसलमान हो जाएंगे। मालिक बिन औफ तो खतरों में कूद जाने वाला खुद सर आदमी था। इसने अपने बुजुर्ग और मैदान जंग के मुंजे हुए उस्ताद दुरैद बिन अलसमा की बंदो नसीहत को ठुकरा दिया था कि वो अक्ल व होश से काम ले और जवानी के जोश व खरोश पर काबू पाए। अब वही मालिक बिन औफ अपनी बीवी के सामने यूं सर झुकाए बैठा था जैसे दिखते हुए अंगारों पर किसी ने पानी छिड़क दिया हो। इसकी मर्दानगी खत्म हो चुकी थी। तमाम मुसलमानों को खत्म करने गए थे मालिक बीवी अब इस तरह बोलने लगी जैसे इसकी निगाहों में इतने जरी और बहादुर शोहर का एहतराम खत्म हो चुका हो। वो कह रही थी, मुसलमानों को खत्म करते करते तुम मुसलमानों की तादाद में इजाफा कर आए हो। काहिन ने कहा था कि कौन काहिन? बीवी ने इसकी बात काटते हुए कहा, वो जो मंदिर में बैठा कालीन फाले निकालता रहता है। तुम जैसे आदमी अपनी किस्मत अपने हाथ में रखा करते हैं और अपनी किस्मत अपने हाथों बनाया और बिगाड़ा करते हैं। तुमने काहिन से पूछा नहीं कि इसकी फाल ने झूठ क्यों बोला है? मालिक बिन औफ उठ खड़ा हुआ। इसकी सांसें तेजी से चलने लगी। इसकी आंखों में खून उतरने लगा। इसने दीवार के साथ लटकती हुई तलवार उतारी और बीवी से कुछ कहे बगैर बाहर निकल गया। ताइफ में रात तो आई थी लेकिन वहाँ की सरगर्मियाँ और भाग दौड़ देखकर दिन का गुमान होता था। बाहर से खबरें आ रही थी कि मुसलमान ताइफ की तरफ बड़ी तेजी से बढ़े चले आ रहे हैं।
लोग दिफाई तैयारियों में मसरूफ था। सबसे बड़ा मसला खुराक और पानी का था। बहुत से लोग पानी जमा करने के लिए हौस बना रहे थे। मालिक बिन औफ इन सरगर्मियों के शोर गल्ब में से गुजरता चला जा रहा था। लोग इतने मसरूफ थे कि किसी को पता ही न चला कि इनके दरमियान से इनका सालारे आला गुजर गया है। इबादत गाह में वो काइन जिसने कहा था कि सकीफ और हज़ान मुसलमानों को मक्का में बेखबरी में जा लेंगे, गहरी नींद सोया हुआ था। इसे जगाने की कोई जुर्रत नहीं कर सकता था। वो इबादत गाह के किसी अंदरूनी हिस्से में सोया हुआ था। इबादत गाह के मुजावर बैरूनी कमरे में सोए हुए थे। इन्हें किसी कदमों की आहट सुनाई दी। ये इनके फराइज में शामिल था कि काहिन के कमरे तक किसी को न पहुँचने दें। 2-3 मुजावर उठकर बाहर आ गए। एक के साथ एक के हाथ में मशाल थी। मालिक बिन औफ एक मुजावर ने मालिक के रास्ते में आकर कहा, क्या कबीले का सरदार नहीं जानता कि इससे आगे कोई नहीं जा सकता? हमसे बात कर मालिक बिन औफ। और क्या तुम नहीं जानते एक सरदार का रास्ता रोकने का नतीजा क्या हो सकता है? मालिक बिन औफ ने तलवार के दस्ते पर हाथ रखकर कहा, मैं काहिन के पास जा रहा हूँ। काहिन के कहर को समझ मालिक एक और मुजावर ने कहा, काहिन जो इस वक्त तुम्हें सोया हुआ नजर आएगा वो लात के हजूर गया हुआ है। इस हालत में इसके पास जाओगे तो मालिक बिन औफ ऐसी जहनी कैफियत में था कि जिसने इसके दिल से काहिन का तकद्दस और खौफ निकाल दिया था। एक तो वो बहुत बुरी शिकस्त खा कर आया था, दूसरे इसकी बीवी ने इसे धुतकार दिया था जिसे वो दिल और जान से चाहता था। इसने मुजावर के हाथ में पकड़े हुए मशअल के डंडे पर हाथ मारा और इसके हाथ से मशअल छीन कर काहिन के कमरे की तरफ चल पड़ा। मुजावर इसके पीछे दौड़े लेकिन वो काहिन के कमरे में दाखिल हो गया। काहिन मुजावरों के शोर से जाग उठा था। अपने कमरे में मशअल की रोशनी देखकर उठ बैठा। मालिक बिन औफ ने मशअल दीवार में इस जगह लगा दी जो इस मकसद के लिए दीवार में बनाई गई थी। मुकद्दस काहिन, मालिक बिन औफ ने कहा, मैं पूछने आया हूँ कि तुम्हारी शिकस्त का सबब क्या हुआ? काहिन ने इसकी बात पूरी करते हुए कहा, क्या मैंने कहा नहीं था कि एक आम की कुर्बानी दो? और मुकद्दस काइन, मालिक बिन औफ ने कहा, तुमने ये भी कहा था कि आम ना मिले तो अपने कबीले से कहो कि अपने खून की और अपनी जानों की कुर्बानी दें। तुमने कहा था कि आम की तलाश में वक्त जाया ना करना। तुमने कहा था कि मुसलमान लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। क्या तू अपने देवता से बाज परस्त करने आया है कि दुश्मन ने तुम्हें शिकस्त क्यों दी है? काइन ने पूछा, मैंने कहा था कि पीठ ना दिखाना। क्या तेरे लश्कर ने पीठ नहीं दिखाई? तेरे लश्कर में तो इतनी सी भी गैरत नहीं थी कि अपनी औरतों और बच्चों की हिफाजत करते। मैं पूछता हूँ तुमने क्या किया? मालिक बिन औफ ने पूछा, अगर सब कुछ हमें ही करना था तो तुमने क्या कमाल दिखाया? तुमने क्यों कहा था कि मुसलमानों को इस वक्त पता चलेगा जब तुम्हारी तलवारें इन्हें काट रही होंगी? क्या तुमने हमें धोखा नहीं दिया? क्या ये दुरुस्त नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चा है जिसने तुम्हारे फाइल को जुटला दिया है? अगर तुम काइन ना होते तो मैं तुम्हें कत्ल कर देता। अब ताइफ पर बहुत बड़ा खतरा आ रहा है। क्या तुम अपने देवता की बस्ती को बचा सकते हो? क्या तुम मुसलमानों पर कहर नाजिल कर सकते हो? पहली बात ये सुन ले, औफ के बेटे, काइन ने कहा, काइन को दुनिया की कोई ताकत कत्ल नहीं कर सकती। काइन की जब उम्र खत्म होती है तो वो देवता लात के वजूद में तहलील हो जाता है। तो मुझ पर तलवार उठाकर देख ले। और दूसरी बात यह है कि मुसलमान ताइफ तक पहुंच सकते हैं, यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। जिस वक्त मालिक बिन औफ काहिन के कमरे में दाखिल हुआ था, इस वक्त किसी इंसान की शक्ल का एक साया इबादत गाह की अक्पी दीवार पर रेंग रहा था। वो जो कोई भी था वो अपनी जान का खतरा मोल ले रहा था। मालिक बिन औफ ही था जो सरदारी के रौब में रात के वक्त काहिन के कमरे तक पहुंच गया था। ये इबादत गाह सदियों पुरानी थी। अकबी दीवार में छोटा सा शगफ था। वो इंसान जिसका साया दीवार पर रेंग रहा था उस शगफ में दाखिल हो गया। आगे ऊंची घास और झाड़ियां थीं। वो इंसान घास और झाड़ियों में से यूं गुजरने लगा कि इसके कदमों की आहट या हल्की सी सरसराहट भी सुनाई नहीं देती थी। वो घास और झाड़ियों में से गुजर कर इस चबूतरे पर जा चढ़ा जिस पर इबादत गाह की इमारत खड़ी थी। इस तरफ के दरवाजे को कोड़ दीमक
खुर्दा थे। वो इंसान खाए हुए इन कोड़ों में से गुजर कर इबादत गाह में दाखिल हो गया। आगे तरीक गुलाम गर्दिश थी। इस इंसान ने जूते उतार दिए और दबे पांव आगे बढ़ता गया। इस गुप्त अंधेरे में वो यूं चला जा रहा था जैसे पहले भी यहाँ आया हो। वो गुलाम गर्दिश की फूल फलियों में से गुजरता कैन के कमरे के नजदीक पहुँच गया। इसे कैन की और किसी और की बातें सुनाई दी। वो मालिक बिन औफ था जो कैन के साथ बातें कर रहा था। ये इंसान रुक गया। इसे कैन के कमरे से आती हुई मशअल की रोशनी नजर आ रही थी। मालिक बिन औफ कैन से इतना मरऊब हुआ कि वो सर झुकाए हुए वहाँ से निकल गया। ये इंसान जो करीब ही कहीं छुप गया था आगे बढ़ा। कैन दरवाजे की तरफ देख रहा था। इसकी आंखें हैरत से खुल गईं क्योंकि इसके सामने एक जवान साल लड़की खड़ी थी। इस लड़की को वो पहचानता था। ये वही यहूदी लड़की थी जिसे एक ज़ईफ अल उमर यहूदी कैन के पास तोहफे के तौर पर लाया था, और इस लड़की के साथ इसने सोने के 2 टुकड़े कैन की नजर किए थे। ये कैन का इनाम या मौजूआ था। कैन ने इसे यकीन दिलाया था कि सकीफ और होजान के कबीले मुसलमानों को मक्का में हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। इसने इस बूढ़े यहूदी से कहा था कि देवता लात का इशारा कभी गलत नहीं हो सकता। बूढ़ा यहूदी इस यहूदी लड़की को कैन के पास एक रात के लिए छोड़कर चला गया था। ताइफ में वो इस खुशखबरी का मुंतजिर बैठा था कि सकीफ और होजान और उनके दोस्त कबीलों ने इस्लाम को मुसलमानों के खून में डबो दिया है। लेकिन हुआ ये कि मालिक बिन औफ सर झुकाए हुए तो ताइफ में दाखिल हुआ। फिर इसके लश्करी कदम घसीटते हुए 2-2, 4-4 की टोलियों में ताइफ में आने लगे। बूढ़े यहूदी की कमर उमर ने पहले ही दौड़े कर रखी थी। मालिक बिन औफ को शिकस्त खुर्दगी की हालत में वापस आते देखकर इसकी कमर जैसे टूट ही गई हो। इसकी कमर पर आखिरी तिनका इस यहूदी लड़की ने रख दिया जिसे वो इनाम के तौर पर कैन के हवाले कर आया था। मैं हैरान हूँ कि तुम जैसे जहानेदा बुजुर्ग ने धोखा खाया। लड़की ने इसे कहा था कि मुझे इस मकरूह काहिन के किसी एक लफ्ज पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने तुम्हारे हुक्म से अपनी असमत कुर्बान कर दी, मेरे हुक्म से नहीं। बूढ़े यहूदी ने कहा था, खुदाई यहूदा के हुक्म से तुम्हारी असमत की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। यहूदियों में यह रवाज आम था जो अभी तक चला आ रहा है कि मैदान जंग में आने से गुरेज करते थे। वो ऐसी चाल चलते थे कि अपने दुश्मनों को आपस में लड़ा दिया करते थे। इसके लिए वो दौलत के साथ साथ अपनी बेटियों की असमत भी एक कामयाब हरबे के तौर पर इस्तेमाल करते थे। यहूदियों के माशरे और मजहब में असमत और आबरू की कोई कदर व कीमत नहीं थी, लेकिन ये लड़की अपनी कौम से बहुत ही मुख्तलिफ साबित हुई। वो बूढ़े यहूदी पर टूट पड़ती थी और कहती थी कि मुसलमानों का किला कुमा हो जाता तो वो फख्र से कहती कि इसने इस मकसद के लिए अपनी असमत की कुर्बानी दी है, और वो ये भी कहती थी कि काहिन ने इन्हें धोखा दिया है। रात को जब बूढ़ा यहूदी गहरी नींद सोया हुआ था, ये लड़की उठी। इसने खंजर अपने तकिए के नीचे रखा हुआ था। इसने खंजर निकाला और अपने कपड़ों के अंदर छुपा लिया। वो दबे पांव बाहर निकल गई। हम जानते थे कि हमारा जादू तुम्हें एक बार फिर हमारे पास ले आएगा, काहिन इस लड़की से कह रहा था। दरवाजे पर खड़ी क्या कर रही हो? लड़की आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और काइन के करीब जा रुकी। जादू नहीं, इंतकाम का हो, लड़की ने अपनी धीमी आवाज में कहा। इसमें कहर और गज़ब छुपा हुआ था। मुझे इंतकाम का जादू यहाँ तक ले आया है। क्या कह रही हो लड़की? काहिन ने हैरत ज़दा मुस्कुराहट से कहा। तुम मालिक बिन औफ से इंतकाम लेना चाहती हो? वो जा चुका है, वो मुझे कत्ल करने आया था। क्या कोई इंसान इतनी जुर्रत कर सकता है कि लात के काहिन को कत्ल कर दे? हाँ, लड़की ने कहा, एक इंसान है जो लात के काहिन को कत्ल कर सकता है। वो लात का पुजारी नहीं, वो मैं हूँ, खुदा यहूदा की पुजारन। लड़की ने पलक झपकते कपड़ों के अंदर से खंजर निकाला और काहिन के दिल में उतार दिया। इसके साथ ही लड़की ने काहिन के मुंह पर हाथ रख दिया कि इसकी ऊंची आवाज ना निकल सके। लड़की ने खंजर निकाला और काहिन के शाहरग काट दी। वो बड़े इत्मीनान से काहिन के कमरे से निकल आई और जिस रास्ते से वो आती थी इबादतगाह के एहतियाती से निकल गई।